chief guest, Swami Shri Niranjananand Ji, prior to the commencement of our program. I extend a warm welcome to Ms. Shanti to take the stage and deliver a few words to us. Good morning, everyone. It's an honor and privilege to stand before you to speak about our esteemed chief guest, Swami Niranjananand Ji. It's a great honor. Thank you so much for the opportunity. Respected Swami Niranjananand Ji is a renowned yogi and successor of the great founder of Satyananda Yoga Param Swami Satyananda Saraswati Ji. Swamiji's life is an inspiring journey marked by unbeatable courage and dedication towards yogic knowledge. At the tender age of 4, he started practicing his yoga nidra and other yogic disciplines under the guidance of his Param Guru. At the age of 10, he marked on the way of renunciation and following his dedication to yogic knowledge and extended it. Swamiji spent time in Europe. He has visited to different places, visited several countries, sharing his knowledge and supreme wisdom to people. Whether it is Virginia, Columbia, California, Greece, or anywhere, whether it is people of different caste, creed, any kind of values and morals, he has touched them with the teaching of yoga as an essential lifestyle, and he has touched their heart with unremarkable knowledge. Following his Guru's footsteps, Swamiji earned recognitions and accolades on several countries in foreign lands. In an article called Return to India by 16 January, In an article called Return to India by 16 January, swift action history led to his appointment of becoming the administrative head of Yoga Ashram. In 1990, he was initiated in the Paramahansa tradition. He organized the World Yoga Conference and many other yoga institutions, including Ganga Darshan and Yoga Research Foundation and many more. In 2009, as advised by his Param Guru, he left all his administrative responsibilities and swung into his dedication in his utmost sadhana, become an individual sannyasi. In recognition of his outstanding collaboration and contribution in social work and yogic knowledge and in the world of yoga, the Government of India conferred upon him the prestigious Padma Bhushan in 2017. Now, he is serving as the Chancellor of the Bihar School of Yoga, from where our late President APJ Abdul Kalam himself got his inspiration as well. For many years, he has devoted himself in the intense Panchakni Tapasya, and now after 16 long years, he has resumed his travel, his voyage unto sharing the knowledge of yoga and wisdom all over the world. He has visited several places in southern India, including Sri Shankaracharya's Mutt named Shringeri Shardapeetham and Ramakrishna Mutt in Bangalore, Karnataka as well. Now, we are deeply grateful that despite having this tough time and continuous travel, he has found time for us to be here and honored us on this prestigious day of the commencement day and the new academic year of Ashoka Academy 2025-26. Thank you so much, Swamiji, for being here. Your grace and honor is a real honor to us. Thank you so much, everyone. Thank you. Now the begin with this event. We now proceed with the lamp lighting ceremony, a tradition that symbolizes the removal of darkness and the pursuit of wisdom. जैसे दीपक की रोशनी अंधकार को दूर करती है, वैसे ही ज्ञान हमारे मन को रोशन करता है और हमें हमारे मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। I invite our esteemed chief guest Swamiji to come forward and take part in this auspicious ceremony. Sir, please. It is now our pleasure to invite our grade 1 and 2 students to perform a
India. योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है. As we start our daily life with the balance of yoga, now we present something to showcase our students who will make you feel happy and healthy. On this note, let us welcome our students. They will show you how they can make a calm atmosphere with yoga. जयति योगविद्या जयति योगविद्या जयति योगविद्या आद्या शुभदा भरत भूमि जाहृत्या जयति योगविद्या सारे पर ऋजने बाबने नो Gama pa ma ga ga re sa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ga ma pa ni sa ni pa ma sa ga ma pa ma ga re sa pa ma ga ma pa ma ga ma pa ma ga ma pa Patanjali Muna Rupagya पतंजलि मुनरुपज्ञा वेदशास्त्र सुप्रज्ञा Patanjali Muna Rupagya
ma pa ma ga ga re sa ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ni pa ma sa ga ma pa ma ga re sa pa ma ga ma pa ma ga ma pa ma ga ma pa Patanjali Muna Rupagyan Patanjali Munarupagya Veda Shastra Supagya Patanjali Muna Rupagyan Veda Shastra Supragyan Karanatraya Mala Samharana Chana Karanatrayamala Samharana Chana हरिहर गौरी घन करुणा Harihara Gauri Ghana Karuna Jayati Yoga Jayati Yoga Vidya Your graceful movements, synchronized breathing, and inner peace have created a calm atmosphere. Thank you for sharing your gift of yoga with us and for bringing a sense of harmony and balance to our evening. Namaste. As we say in Indian tradition, we should invoke the blessings of Lord Ganesha for every successful program. Lord Ganesha, the remover of obstacles, is seen as symbol of wisdom, prosperity, and good fortune. Therefore, I welcome Meenakshi Ma'am to present a beautiful dance performance on Ganesh Vandana. May Lord Ganesha's blessing be upon us as we start to and may His divine presence guide us towards success, happiness, and fulfillment. Thank you. वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय
गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गुणवते गणपतये एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है कृष्ण की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो
जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। आओ जी पधारो मार देश जी, आओ जी पधारो मार देश जी। मार मारे देश रो मैं काई करो बखान, मार मारे देश रो मैं काई करूं बखान। धरती सुनहरी लहरियों के सरियो आसमान, धरती सुनहरी लहरियों के सरियो आसमान। आओ जी पधारो हमारे देश जी, ओ आओ जी पधारो हमारे देश जी। सालरिया मलरिया मोरुबाई लालेरिया, आयो रे तोरा वालो देश वीरो बनी जारो रे। जयपुर का गुलाबी तन मन, पुष्कर देवों का घर आंगन। कांटों में मीठा बेर है ये मेरा बीकानेर है। जीवन का जश्न मनाते हैं हम, बाटी बाट के खाते हैं। जोधा की नगरी को उगता सूरज करे घनी घनी खम्मा। घड़ी घड़ी खम्मा। आओ जी पधारो मारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। सब धर्मों की है ये धरती, ख्वाजा पिया को सलाम ये करती। बंधेज के जैसे बंध जाओ, प्रीत के रंग रंग जाओ। मीरा सा प्रेम को सिद्ध करो, उठो प्रताप से जिद करो। ओ राजस्थान री हवा सू महके कायनात रो, कण कण आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो मार देश जी। Guru
opportunities, challenges and endless possibilities. आज जब हम एक नए सत्र की शुरुआत कर रहे हैं तो हम उन सभी के प्रति आभारी हैं जिन्होंने पिछले सत्र को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। हम आपका अशोका एकेडमी के नए सत्र के उद्घाटन समारोह में स्वागत करते हैं और यह आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम सफल एवं यादगार बने। धन्यवाद। On this very note, let's welcome our honorable principal ma'am to take the stage and share a few words of wisdom with us. Good morning everybody, शुभ प्रभात। और सबसे पहले तो मैं बड़े ही विनम्र भाव से और my humble approach, I just want to touch the feet of Swamiji. It's his first sight when I came here. I met him on the first day of inauguration on 28th of December. I saw a tall, vibrant personality approaching, a very pious personality with a big aura, approaching the school building and getting in and observing everything with keen eyes, and it was like to see him blessing everyone, everything, and appreciating the infrastructure, and his face was with a lot of praises for everything and a futuristic thinking what we are going to have in the future in this building. स्वामी जी ने तो उसी दिन देख करके हमें महसूस करा दिया था कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और आने वाले दिनों में जब हम यहाँ काम करेंगे तो हम उन्हें याद रख के काम करेंगे, ये सोच हमने उसी दिन बनाई थी। और धीरे धीरे जब ये जर्नी आगे बढ़ी, इस जर्नी में बहुत सारे लोगों ने अपना काम किया, लेकिन एक नाम जो हमारे साथ डे वन से है, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे चेयरमैन सर, हमारे डायरेक्टर सर, निदेश सर, जिन्होंने उंगली पकड़ के हम सबको अंदर आकर के काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, हमारे लिए he was the source of inspiration for all of us, whether be it the principal or the peon, जो भी था, everybody was working under his shelter और day one से लेकर आज तक under his guidance, under his visionary approach, under his a kind of touch. It shows that he is quite interested in knowing everything, whatever is going on, wherever it is going on, and whenever and whatever the place is. अगर आप क्लास नर्सरी उठाएंगे वहाँ पे भी हम चेयरमैन सर को देखते हैं, अगर आप ग्रेड 7 उठाएंगे वहाँ पे भी हम सर को देखते हैं। एक पीछे चेयर रखी रहती है, बच्चे ये बात सही है, मानते हैं ना, पीछे एक चेयर रखी रहती है जहाँ कभी भी चेयरमैन सर जाकर के बैठ के क्लास प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, एंड ही गिव्स इनपुट टू ऑल ऑफ अस। मैं सर स्वामी जी के सामने ये बात बोलना चाहती हूँ क्योंकि फिर शायद मौका ना मिले, सर तो मना कर रहे इस पर माफी चाहूंगी, लेकिन स्वामी जी चेयरमैन सर ने मुझे इन 20 सालों में, मैंने 20 साल काम किया सर, इतना वाइब्रेंट मैनेजमेंट नहीं देखा सर, जो हर जगह मौजूद है अपनी आत्मा के साथ, अपने शरीर के साथ, और हर जगह वो काम को ब्यूटिफाई करने के लिए मरे रहते हैं। तो जो उस लीडर में जब इतना ज्यादा पावर और एनर्जी है तो वो नीचे तक ट्रांसफर होती है स्वामी जी, और हमारे लीडर जो है आपके शिष्य हैं, तो स्वामी जी आपकी एनर्जी नीचे सबसे छोटा जो यहाँ पे इंसान है उस तक पहुँच रही है, और स्कूल वाकई बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे सारे टीचर्स बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। Hari Om Swami Ji, Hari said that he is your best friend, but who is your best friend? I think everyone's best friend is Hari, and he is also my best friend. Who is a best friend?
somebody who loves you without any expectation, somebody who is with you without any expectation, and somebody on whom you can count whenever you need any help or assistance. I have met many people in my life, but the best friend that I would call are the animals, because they don't expect anything from you and they only give you their unconditional love. And Hari is my friend, and not only my friend, he is friend of every person in this planet. Because there are two Haris. One Hari is my friend and companion, who is the dog. And another Hari is also my friend and companion, but who is God. Dog and God. You just reverse the letter and you'll get the same thing. How do you spell dog? D-O-G. And if you reverse dog, what does it become? God. And how do you spell God? G-O-D. Very good. I have two friends. One is my dog and the other one is my God. And they both are called Hari. And you know the meaning of the word Hari? Hari means somebody who likes you very much. So who likes you very much? God and dog. They both are man's best friend. हरिओम स्वामी जी, परमहंस संन्यास क्या है और यह अवस्था जीवन को कैसे छूती? एक बार फिर बोलो। हरिओम स्वामी जी, परमहंस संन्यास क्या है और यह अवस्था जीवन को कैसे छूती? बहुत कठिन प्रश्न है जी। संन्यास एक शब्द है जिसका अर्थ होता है त्याग, और उसी संन्यास परंपरा में परमहंस की एक उपाधि है और एक अवस्था है, जिसका मतलब होता है ज्ञान और विवेक। सो त्याग और वैराग्य एक चीज है, ज्ञान और विवेक दूसरी चीज है। संसार में, समाज में अनेकों लोग हैं जो गेरू पहनते हैं, जो घर छोड़े हैं, जो परेशान हो गए हैं, और वो लोग अपने आप को त्यागी कहलाते हैं। लेकिन एक और भी ग्रुप होता है जो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन को कैसे सुधारा जाए, और वो लोग परमहंस के श्रेणी में आते हैं। हंस का मतलब हंस की क्या क्वालिटी है, उसका गुण क्या है। कहा जाता है कि जो हंस होता है, अगर तुम उसको दूध और पानी मिला करके दोगे तो पानी से दूध को वो अलग कर देता है और दूध को पी लेता है। तो परमहंस का भी यही अर्थ होता है कि जो ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को जान सके, पहचान सके और उसके अनुसार चल सके। तो त्याग और वैराग्य संन्यास है। त्याग वैराग्य के साथ ज्ञान और विवेक परमहंस की उपाधि। हरिओम स्वामी जी, आपके गुरु स्वामी सत्य
अच्छा दिखते हैं ना, अच्छा दिखने के लिए। जो ड्रेस होता है, हम लोगों का ड्रेस है 2 धोती और हम लोगों का खाना है 2 रोटी। तो हमको क्या चाहिए? 2 धोती चाहिए और 2 रोटी चाहिए। इससे ज़्यादा जीवन की आवश्यकता नहीं है। अब जब तुम लोगों के साथ आते हैं तो मन तो बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है। और तुम लोगों ने जो आज सुंदर प्रस्तुति की, वो तो लगता था कि देखते ही रहे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब तुम लोगों के साथ आते हैं तो अगर हम दाढ़ी बढ़ा के आएंगे तो तुम पसंद नहीं करोगे, लेकिन अगर बाल मुड़ा के आते हैं तो तुम लोग कहोगे तो हमारे जैसा दिखते हैं। होता है कि नहीं? तो 2 धोती 2 रोटी सन्यासियों की आवश्यकता है। और जब तुम लोगों के साथ है तो जीवन का जो आनंद है, जो खुशी है, उसके लिए थोड़ा सच करके भी आना पड़ता है। हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी, आपके आश्रम में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ चिड़िया, हरी और आर्य जैसे प्राणी आपके साथ घुल मिलकर रहते हैं और आपके साथ आश्रम में चलते हैं। यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि वे इतना अनुशासित और विनम्र व्यवहार कैसे करते हैं। क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण या प्रशिक्षण है? इसके पीछे आश्रम की ऊर्जा है, आश्रम का वातावरण है। अब जैसे यहाँ पर हम आते हैं अशोका एकेडमी में, तो यहाँ पर वातावरण अलग है, और तुम्हारे घर जाएंगे तो तुम्हारे घर का वातावरण अलग है। तो जहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा का स्पंदन हो रहा है, वहाँ पर पशु, पक्षी और मनुष्य वैर भाव को भूल करके मित्र मैत्री भाव में आते हैं, रहते हैं। इसीलिए कहानियों में बहुत बार पढ़ने को मिलता भी है कि जो ऋषि मुनियों के आश्रम हैं, साधु सन्यासियों के आश्रम हैं, वहाँ पर शेर और बकरी, शेर और हिरण एक ही साथ, एक ही नाद में पानी पीते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो भाव रहता नहीं कि हम इसके शत्रु हैं या इसके मित्र हैं। आश्रम में भी हमको पशु पक्षी बहुत ही प्रिय लगते हैं, और वो भी हमको अच्छा मानते हैं, क्योंकि उनके साथ आज तक कोई खराब काम नहीं किए हैं। तो सोचते हैं कि स्वामी जी भी हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, तो उनको कोई संकोच नहीं होता है साथ में रहने और साथ में खाने और साथ में सोने का। बल्कि जिस कमरे में हम रहते हैं वहाँ पर हम किराएदार हैं, तो मेरा कमरा भी है, वो हम किराएदार हैं। उस कमरे में 7 चिड़िया रहते हैं, एक कुत्ता रहता है और हम रहते हैं। तो छोटा कमरा है, उसमें 7 चिड़िया, एक कुत्ता और हम 9 लोग रहते हैं, और सब साथ में सोते हैं, सब साथ में उठते हैं, सब साथ में खाते हैं। तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो हमारा देखभाल कर रहा है। हरिओम स्वामी जी। स्वामी जी, जब आप विदेश गए और वहाँ के कानून के तहत आपको पढ़ाई करनी पड़ी, तो ऐसा क्या हुआ कि कक्षा 4 से लेकर कक्षा 10 तक की पढ़ाई आपने 1 महीने में तय कर ली, जिसके कारण आपको ऑक्सफोर्ड से निःशुल्क
सामान्य मनुष्य के लिए संभव है। हम भी तो सामान्य मनुष्य हैं, लेकिन अंतर इतना ही था कि हमारे गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी ने हमको एक तरीके से पढ़ाया था। तरीका क्या था? हम सो जाते थे, और जब हम सो जाते थे योग निद्रा के अभ्यास में, तो खुराटा भी लेते थे। लेकिन जब हम सो रहे हैं तो हमारे गुरु जी हमको किताबों से पढ़ करके बात बता रहे थे, और अगले दिन वो किताब हमको देते थे कि इसको पढ़ो। तो जब हम किताब खोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे हम इस विषय को जानते हैं, इसको हमने कहीं पर पढ़ा है, इसके बारे में कहीं पर बात हुई है, किसी से चर्चा की है, और इसलिए कोई भी विषय अनजान विषय नहीं रहता था। चाहे वो साइंस का विषय हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कोई भी विषय हो। यहाँ तक कि गीता, रामायण, उपनिषद, ये सब भी जब पढ़ते थे तो लगता था कि ये पढ़ा हुआ है। जब बाहर गए थे तो कुछ समय के लिए हमको स्कूल में नामांकन कराना पड़ा ताकि वहाँ रहने का परमिशन हमको मिले। तो वहाँ पर व्यवस्था है कि वो लोग आपका टेस्ट लेते हैं, और अगर आपको ज्ञान है तो आपको अगली कक्षा में प्रवेश मिलेगा। तो वहाँ भी हाई स्कूल तक हमने पूरे 9 महीने में कंप्लीट किया, और उसका कारण भी यही था कि जो हम पढ़ते थे वो हमको तुरंत याद हो जाता था। एक बार किताब खोले, उसको देखे, और वो विषय याद हो जाता था। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में भी ऐसी घटनाएं आती हैं। एक बार वो लाइब्रेरी में गए, और लाइब्रेरी से 10 किताब उन्होंने आज लिया, और दूसरे दिन कल जा करके 10 किताब वापस की और 10 किताब और लिए। तीसरे दिन 10 किताब वापस किए, 10 किताब और लिए। तो लाइब्रेरियन एक बार उनसे पूछा कि तुमको पढ़ना आता है कि नहीं? रोज किताब देते हो, रोज वापस करते हो। अरे पढ़ना तो एक किताब पढ़ो, 10 किताब से क्या करो? तो स्वामी विवेकानंद जी उसको कहे कि तुम जो किताब हम वापस किए हैं, किसी भी किताब से पूछो कि किस पन्ने में क्या लिखा है, और वो हम तुमको बता देंगे। तो लाइब्रेरी वाले ने भी उनकी बहुत परीक्षा ली, पूछा था कि इस किताब के 50वें पन्ने पर 10वें लाइन में क्या लिखा है, और स्वामी विवेकानंद जी उसको बता देते थे। ये दिमाग की एक अवस्था है जिसको कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। जो तुम देखोगे, जो तुम पढ़ोगे, वो मन में जैसे फोटो होता है वैसा अंकित हो जाता है। जैसे तुम मोबाइल में फोटो लेते हो, वैसे ही दिमाग में ये फोटो रह जाता है, और तुम कभी भी अपने मेमोरी बैंक से उस फोटो को सामने ला करके पढ़ सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद जी में तो यह गुण था। हमारे गुरु जी ने हमको योग निद्रा के माध्यम से सुला करके जो पाठ पढ़ाया, उसके चलते थोड़ा बहुत ये फोटोग्राफिक मेमोरी भी हमको प्राप्त हो गई।
और उसके चलते फिर जो एक सेशन होता है स्कूल का, उसमें हमने पूरे हाई स्कूल की पढ़ाई को पूरी की। और उस समय निमंत्रण आया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कि आप हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आओ और पढ़ो। तो हमने बहुत सोचा इसके बारे में कि भविष्य में मेरा क्या काम होना है। और हमने अपने गुरुजी से भी पूछा, तो गुरुजी कहे कि जैसे तुम्हारी इच्छा, हम तुम्हारी इच्छा का समर्थन करेंगे। तो फिर बाद में हम सोचे कि जीवन तो मेरे को एक सन्यासी के रूप में बिताना है, और जो मेरे लिए उपयोगी था और जो मेरे जीवन में काम आएगा वो मेरे को मिल रहा है। तो इस विचार के पश्चात फिर हम यूनिवर्सिटी नहीं गए, लेकिन जो भी हमारे पास ज्ञान था, नॉलेज था, उसका सही उपयोग करके आज यहाँ तक बढ़ पाए। वैसे अगर पूछोगे हमने कितना क्लास पास किया भारत में, तो चौथी फेल। Thank you, Swamiji, for your valuable information. Your precious time and effort will create a huge impact in our lives. Swamiji, please let us know when we will get opportunity of hosting you again. देखो भाई, यहाँ पर आने से हमको बहुत ही अच्छा लगता है, विशेषकर बच्चों से मिल करके और यहाँ के शिक्षकों से मिल करके और यहाँ के प्रिंसिपल से मिल करके और यहाँ के अपने चेयरमैन साहब से मिल करके बहुत ही अच्छा लगता है। और हम तो कोशिश करेंगे कि बार बार हम यहाँ पर आते रहें, तुम लोगों के साथ मिलते रहें और तुम लोगों का जो बहुत सुंदर प्रदर्शन हुआ था उसको देखते रहें। So yes, I'll be back. Thank you. एक छोटी सी कहानी बता के खत्म करते हैं। एक बार नारद जी का नाम सुने हो ना? नारद जी घूम रहे थे तो देखते हैं कि माता सरस्वती और माता लक्ष्मी चुपचाप बैठे। तो गए माता सरस्वती के पास, कहते कि माता आप यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हैं? माता ने कहा कि मैं बैठी नहीं हूं, मैं काम कर रही हूं। कौन सा काम? लोगों को ज्ञान देना, लोगों को विद्या देना, ये मेरा काम। फिर उन्होंने माता लक्ष्मी से पूछा कि माँ आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तो माता लक्ष्मी कहती है कि मैं अपने वाहन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वाहन उनका उल्लू है और उल्लू सर्विसिंग में गया हुआ था। तो माता लक्ष्मी उल्लू की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर जब उल्लू आता है तो माता लक्ष्मी उस पर बैठ करके चली जाती है और लोगों के पास जा करके उनको धन देती है। तो एक लड़का था तुम्हारे जैसा, तो नारद जी को पूछता है
कि नारद जी आप एक बात बताइए कि लक्ष्मी जी हर घर में जाते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन कभी किसी घर में स्थिर नहीं बैठती है और सरस्वती जी चुपचाप बैठे रहती है। इसके पीछे रहस्य क्या है? तो नारद जी बतलाते हैं उस बच्चे को कि देखो, पैसा आता है और जाता है। कभी तुम करोड़पति बनोगे, कभी कंगाल हो जाओगे। कभी तुम्हारे पास पैसा आएगा, कभी तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा। ये लक्ष्मी जी का स्वभाव है, चंचल है। लेकिन माँ सरस्वती एक बार जब आती हैं तो फिर वो वहां से जाती नहीं है। तो बालक ने पूछा, ये कैसे संभव है कि एक बार वो आती है तो जाती नहीं है? तो नारद जी बतलाते हैं उस बच्चे को कि देखो, पैसा आता है और जाता है। कभी तुम करोड़पति बनोगे, कभी कंगाल हो जाओगे। कभी तुम्हारे पास पैसा आएगा, कभी तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा। ये लक्ष्मी जी का स्वभाव है, चंचल है। लेकिन माँ सरस्वती एक बार जब आती हैं तो फिर वो वहां से जाती नहीं है। तो बालक ने पूछा, ये कैसे संभव है कि एक बार वो आती है तो जाती नहीं है? तो नारद जी बतलाते हैं कि जब ज्ञान कोई प्राप्त करता है तो ज्ञान उस मनुष्य के, उस व्यक्ति के अंत काल तक साथ रहता है। ज्ञान ना घटता है ना बढ़ता है। जैसे पैसा कम होता है, ज्यादा होता है, वैसे ज्ञान घटता नहीं है और बढ़ता नहीं। ज्ञान ज्ञान है। और इसलिए माता सरस्वती अगर किसी के जीवन में एक बार आ जाती है, फिर वहां से उनका जाना नहीं होता है। तुम लोग इस विद्यालय में माता सरस्वती की आराधना करते हो। उन्हीं की कृपा से तुमको विद्या की प्राप्ति होती है। उन्हीं की कृपा से तुमको संगीत का ज्ञान मिलता है। उन्हीं की कृपा से तुमको कला का ज्ञान मिलता है। तो जितना भी जिंदगी में उपयोग होने वाली चीजें हैं, वो सब माता सरस्वती के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे संगीत हो, चाहे कला हो, वो माता सरस्वती का वरदान है। इसलिए तुम लोग हमेशा ये प्रयास करना कि माता सरस्वती को अपने जीवन में एक सुंदर स्थान देना बैठने के लिए, जहां पर वो बैठ करके फिर कभी तुमको छोड़ के नहीं जाए। और जब माता सरस्वती तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से बैठ जाती है, उसके बाद फिर माता लक्ष्मी का आवाहन करना, उनकी आराधना करना। उसके बाद फिर जब माता लक्ष्मी आती हैं तुम्हारे जीवन में वैभव के रूप में, संपदा के रूप में, तो फिर वो भी वहां पर स्थायी रहेंगे। तो अभी हमें बहुत ही प्रसन्नता है, यहाँ पर जितना भी हमने कार्यक्रम देखा है और यहाँ के जितने भी लोग हैं, शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, सब लोग तुम्हारे उत्थान के लिए, तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में माँ सरस्वती को लाने के लिए अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और तुम भी इन सब का सहयोग देना
और कैसे सहयोग दे सकते हैं छोटे बच्चे बड़ों को? अनुशासन के द्वारा, आज्ञा मान करके, स्वयं को अनुशासित रख करके, और तब जाकर के एक शिक्षक तुम्हारे भीतर से एक सुंदर ज्ञानवान को प्रकट कर पाएगा। तो यही अंतर है माता सरस्वती में और माता लक्ष्मी में। जीवन में सबसे उपयोगी देवी है माता सरस्वती। अगर उनका आशीर्वाद नहीं रहा तो लक्ष्मी जी के पैसा से भी कुछ कल्याण नहीं होगा, लेकिन अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो अगर तुमको एक पैसा भी मिलेगा, उस पैसा से सभी का, सभी प्राणियों का, सभी जीवों का, पूरे समाज का कल्याण संभव है। इसलिए तुम्हारे जो मित्र हैं, तुम्हारी जो माँ है, वो माँ सरस्वती है। जैसा मेरा दोस्त हरि है, वैसे तुम्हारी माता का नाम माँ सरस्वती है, और उनका सम्मान करना, उनका सत्कार करना, ये तुम लोगों का कर्तव्य है, धर्म है। और इसी के साथ हरिओम तत्सत। हम लोग फिर मिलेंगे। We represent Oxford University Press, which is a department of University of Oxford. आपके स्कूल को इस साल ऑक्सफोर्ड क्वालिटी एक्रेडिटेशन मिला है, ऑक्सफोर्ड क्वालिटी का रिकॉग्निशन मिला है। ऑक्सफोर्ड क्वालिटी, इसके लिए तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्कूल। ऑक्सफोर्ड क्वालिटी का मतलब है, जैसे आपने ISI देखा होगा, इंडियन जो स्टैंडर्ड की एक मार्किंग की जाती है प्रोडक्ट्स के ऊपर। सिमिलरली यू हैव EDMA ऑन फूड प्रोडक्ट्स। सिमिलरली वी हैव अ ग्लोबल क्वालिटी रिकॉग्निशन फॉर स्कूल्स। जब हमारी टीम आपके स्कूल में आई, मैं भी आया था, हमने आपके पूरे जो कैंपस है उसको देखा, आपके लैब्स को देखा, आपकी क्लासेस में गए। इनफैक्ट आई इंटरैक्टेड विद योर लवली चिल्ड्रन। आपके स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हमने देखा, टीचर्स से बात की, प्रिंसिपल साहब, चेयरमैन साहब से हमारी बात हुई, प्रिंसिपल मैम से मेरी लंबी बातचीत हुई। आई हैड इंटरैक्शन विद योर चेयरमैन सर एंड वी फाउंड आउट दैट शायद लखीसराय में ये दिस इज द ओनली स्कूल विच इज एमिंग विद, विच इज फ्यूचरिस्टिक, जो आगे की सोच लेके अपने विजन को चल रहे हैं। और जो पैरामीटर्स हैं, मतलब जैसे शिक्षा के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, दे आर कीपिंग एवरीथिंग एट द टॉप। तो एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, कल को जब आप बड़े होंगे क्लास 10 के बाद, व्हेन यू गो एंड फेस द रियल वर्ल्ड, तो आपको किसी भी तरह की ना डिफिशियंसी नहीं फील होगी कि मैं तो लखीसराय में हूँ तो पटना का बच्चा या दिल्ली का बच्चा मुझसे आगे है। इस विजन के साथ अगर स्कूल चल रहा था तो हमने रेकमेंड किया स्कूल को कि वी शुड गिव अ ग्लोबल क्वालिटी रिकॉग्निशन फॉर दैट स्कूल। और ये जो चीज़ है हम बहुत ही दिस रिकॉग्निशन भी जो ओनली हैंडफुल चुनिंदा स्कूलों को देते हैं। और हमारे ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल पोर्टल में मैम इंडिया होगा, वहाँ पे अशोका एकेडमी दिखेगा इन नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, मतलब के बाद कोई भी जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड ये सर्टिफाई कर रहा है कि जो हमारी गुणवत्ता है, हमारी क्या गुणवत्ता है, वी आर द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑन द प्लेनेट। इस वर्ल्ड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी का नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और वो ये कह रहा है कि जैसे हम हैं वैसे ही हमारा ये स्कूल है। सो दैट इज द लेवल ऑफ क्वालिटी विच द स्कूल हैज, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल मैम दैट अदरवाइज शायद लखीसराय में ऑक्सफोर्ड नहीं होता, हमें बुलाया गया है यहाँ पे
हम स्कूल तक नहीं आए थे, स्कूल हम तक आया था. So that is the kind of vision the management has, the school has, and ultimate beneficiary तो बच्चे ही होंगे और parents होंगे. So tomorrow you will be a proud parent that you have chosen such a good school. आज जब मैं बच्चों को देख रहा था, trust me, लखीसराय की एक अलग इमेज है. जब लखीसराय की बात आती है तो मतलब but the kind of shine which I saw in on your students, जो बच्चों के जो चमक मुझे दिखी योगा करते टाइम या छोटे छोटे बच्चों के उस प्रोग्राम के टाइम, the way your students are doing this anchoring and the way they are speaking, I was just telling sir कि you are making Lakhisarai shine. And really, we feel proud to be a part of this ecosystem. And I would welcome the school team, Chairman sir and Principal ma'am, to receive this Oxford Quality certificate on behalf of One line I need to add to what Secretary Tasha has said. It was Chairman sir's vision to talk to you people and to bring you from wherever on the globe. And he was quite keen to have a word with you people and to have the syllabus running in the school. Your syllabus is no doubt very extensive. It is in details and it has everything captured in that. There are a lot of works we have. But at the same time, Chairman sir was quite able to procure all sorts of human resources and everybody. So credit goes to the teachers here. It is your credit where you were successfully able to conduct Oxford syllabus in the school. We have a lot of flowers in our bouquet like Prerna, Shreya. There are many more teachers, Sonam Bench, we have Aparna, Anushka, Bhavna. There are many teachers we have, but these are all day and night working for the स्वामी जी फिर से बहुत प्रणाम आपको और आप आए इस बात के लिए कितना भी हम कुछ कहें ये बहुत कम होगा. आपने इतना वक्त दिया है. जैसे हमारे कलीग ने कहा कि आप साउथ इंडिया के टूर के थे और उस टूर के अंदर से आप आए, वक्त निकाला आपने हमारे लिए और हमें आशीर्वाद दिया. आपके हाथों हमने इस स्कूल का उद्घाटन किया. आपने हमें ये गिफ्ट दिया है, आपने हमें ये स्कूल दिया कि हम इसको चलाएं और बेहतर तरीके से चलाएं. अर्चना हमारे साथ बाकी कलीग्स आपके सामने खड़े हैं आशीर्वाद के लिए और सत्य प्रकाश जी जैसे लोग हमको मिले, ऑक्सफोर्ड के लोग मिले, ये लोग आए और मुझे लगता है इनका तीसरा या चौथा विजिट है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हम इनके इस सर्टिफिकेशन के काबिल हैं या नहीं हैं. और ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आपके आंखों के सामने वी आर गेटिंग इट इन फ्रंट ऑफ आवर गॉड. सो what else to be said? Thank you. An opportunity. It is now my pleasure to invite Ms. Meenakshi ma'am to the stage who will deliver the vote of thanks, expressing our gratitude to all those who have contributed for the success of the event. Thank you.
first and foremost, I extend my deepest thank you to all your gurus for enlightening us with your knowledge and your blessings. Guruji, Niranjana Saraswati ji, last time actually we missed you in that function, and today your presence is really means a lot for us, and your blessings is very important for our kids and as well as me too, and for my teachers too. So thank